Hello students, in our previous video we have discussed about the monohybrid and dihybrid cross with respect to the Mendel's law. Now in this video students we will see about the evolution, the evidences of evolution, that how evolution takes place, what exactly the meaning of evolution. So first of all, before starting the evolution, let's discuss what we have discussed in our previous video by what we have learned, that is dihybrid cross. The meaning of dihybrid cross is that students, when two characters simultaneously taken together and we make the cross and new generation is formed, then we call it dihybrid cross. For example, here in this case Mendel took two characters of the pea plant, that is here the capital Y and small y, capital Y, capital R, and here small y, small r. Here what does capital Y represent? Capital Y represent the color of the seed. Capital Y and small y both represent the color of the seed. Capital Y means yellow, capital Y represents the yellow color, and small y represent green color. You can see here two types of the seed, one is yellow, color is yellow, and second is of green color. So capital Y represent the yellow color and small y represent the green color. Second letter is R. Here R represent the shape of the seed. Capital R here means the seed is round. So you can see that yellow seed is exactly round in shape. But small r represent a wrinkled seed. Wrinkled, that means constricted. बिल्कुल हिंदी में अपन बोलते हैं उसको सिकुड़ा हुआ. So it is constricted. So you can see that green color seed is not in round shape, but somehow its shape is distorted. Now these two characters simultaneously we are making cross. इनको क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब इन दोनों से अपन एक नया बीज बना रहे हैं. In this case students, see one capital Y and one capital R will form a gamete, and gamete here this is representing the gametes. First gamete form in which one character of the yellow and one character is of round is there, and second gamete is forming in which one small y and one small r is there. Small y, that means character of the green, and r, small r, that means character of a wrinkle. When these four combines together, they form a individual with the character capital Y, small y, capital R and small r. क्योंकि ये जब चारों कंबाइन होंगे तो एक तरफ से कैपिटल Y, दूसरी तरफ से स्मॉल y, तो कैपिटल Y स्मॉल y, फिर एक तरफ से कैपिटल R, फिर स्मॉल r, तो ये कैपिटल R स्मॉल r, ऑल दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल. अब देखो इस न्यू इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी क्या है, कैसा दिख रहा है ये अपने को, येलो कलर का दिख रहा है, और राउंड है कि रिंकल है, राउंडेड है पूरा, है ना. तो राउंड, जबकि इसमें कैरेक्टर्स किसके हैं, ग्रीन के भी हैं, स्मॉल y भी है ना, और रिंकल्ड के भी हैं, स्मॉल r भी हैं. बट हाउ डज इट अपीयर्स, कैसा दिखाई दे रहा है अपने को, येलो एंड राउंड. That shows that yellow is dominant over green. If both the characters are present here but it appears yellow, इसका क्या मतलब है, अगर दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है और वो येलो दिख रहा है, मतलब येलो क्या है, पावरफुल है, इट इज डोमिनेंट, इट एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ एंड ग्रीन रिमेन्स सप्रेस्ड. इन द सेम वे हियर द कैपिटल R and small r or round and wrinkled. When round and wrinkle both are present together, then the shape of the seed is round. It shows that round character of the round is powerful and wrinkle is recessive. The character which appears when both the contrasting characters present, then the character which appears is called dominant. जब दो अलग अलग कैरेक्टर एक ही उसके
जैसे अपन ने शेप लिया यहाँ पर, एक ही प्रॉपर्टी है। अब शेप में दो हैं अपने पास में, एक तो राउंड है और एक रिंकल्ड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। जब दोनों का एक एक पार्ट प्रेजेंट है और उसमें अगर राउंड दिखाई दे रहा है अपने को, दैट मीन्स क्या हुआ, राउंड ज़्यादा पावरफुल है। तो मेंडल ने इसको क्या कहा, डोमिनेंट कैरेक्टर। और रिंकल्ड जो है तो सही लेकिन वो दिखाई नहीं दिया यहाँ पर, उसको क्या बोला उन्होंने, रेसेसिव। तो कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सप्रेशन, कैरेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज डोमिनेंट एंड सेकेंड इज रेसेसिव। डोमिनेंट जो खुद को दिखाता है, रेसेसिव जो खुद को नहीं दिखा पाता है, जो सप्रेस हो जाता है। ठीक है, अब क्या करा मेंडल ने यहाँ पर, मेंडल अगेन मेड द क्रॉस एंड हियर दिस इंडिविजुअल क्रॉस टुगेदर। अब ये जो बने थे इन दोनों की क्रॉस करवाई। नाउ सी हाउ द गेमेट इज फॉर्म। हियर द sperms form with capital Y. This capital Y will combine with this capital R. So it is capital R, capital Y. Secondly, this capital Y will combine with this small r. So here the capital Y and small r. Just. So here when capital Y combined with capital R, then one gamete. When capital Y combined with small r, then second gamete. Now the small y combined with capital R, so small y capital R, and when small y combined with small r, then small r small y. So these four gametes are formed. Now we have to cross these four gametes. In order to make the cross between these four gametes, we have to write them in the form of the Punnett square. Let's see what exactly the Punnett square is. Let's understand what exactly the meaning of Punnett square. Punnett square हम किसको बोलते हैं और Punnett square का यूज़ हम जेनेटिक्स में कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए Punnett square को समझने के लिए जिस तरह से हम चेस खेलते हैं, सेम उसी तरह से Punnett square को ड्रॉ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर, एंड इट इज़ ऑलवेज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, जनरली इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 2 से हमने किया है तो यहाँ पर 4 बनाएंगे हम। अगर किसी के 4 गैमेट्स बनते हैं तो 4 4 जा 16 स्क्वायर्स बनेंगे। तो 16 स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इस तरह से 2 3 एंड 4 ये इस तरह से हम स्क्वायर बनाएंगे। अब इन स्क्वायर्स के सामने हम गैमेट्स के नाम लिखेंगे। गैमेट्स को जब अपने को रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरह से इसके सामने हम गैमेट्स के नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं जो गैमेट्स बने हुए हैं, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे इनको, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर जो हमारा है वो है स्मॉल वाई और कैपिटल आर, और फिर जो है वो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये 4 गैमेट हैं। इन 4 गैमेट्स को हमने इस तरह से सीक्वेंस से लिखे। इन्हीं 4 गैमेट्स को हम ऊपर भी सीक्वेंस से लिखेंगे। वी विल हैव टू राइट दी 4 गैमेट्स एज इन द सेम सीक्वेंस एज दे आर रिटन वर्टिकली। वी हैव टू राइट देम हॉरिजॉन्टली। कैपिटल वाई कैपिटल आर, सेकेंड नंबर कैपिटल वाई स्मॉल आर, हियर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर. Now we have to combine this. The square in front of which the gametes are written, we have to combine them and write it inside the box. For example, here this combination of this and this. First of all, we will write the YY and then RR. So here capital Y, we will write capital Y and capital R, capital R. And here in case of this second, capital Y
एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये देखो, तो सिंपली सिर्फ इसके सामने जो भी है उसको लिखते जाना है। यहां पर हम देखेंगे इसके सामने तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, इस तरह से। तो अब हम देखें इसको यहां पर, तो देखो सिंपल सा है बहुत। See, here the combination of capital Y, capital R. So it is written here capital Y, capital R. देखो यहाँ पर सबके सामने, बॉक्स के सामने उसी का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अगर हम पर्टिकुलर इसकी एक की बात करें यहाँ पर, तो देखो कैपिटल Y ऊपर है, स्मॉल y इस तरफ है, तो कैपिटल Y स्मॉल y। फिर देखें तो R है, तो इधर कैपिटल R है, इधर स्मॉल r है। अब हमें ये देखना है कि जो कैपिटल अपन ने अभी देखा था कि कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r, इनका मतलब क्या था, और जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वो दिखाई कैसा देगा अपने को। मान लो कैपिटल Y और स्मॉल y प्रेजेंट है तो कैसा दिखाई देगा, वो येलो कलर का दिखाई देगा, क्योंकि स्मॉल r जो है वो ग्रीन का सिंबल है और ग्रीन रेसेसिव है। अगर दोनों साथ में प्रेजेंट है तो y वाला डोमिनेंट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अपन r की बात करें तो कैपिटल R और स्मॉल r अगर प्रेजेंट है तो वो राउंड शेप हो जाएगा, उसका रिंकल्ड वाला रेसेसिव हो जाएगा। नाउ सी इन दिस केस स्टूडेंट्स, कैपिटल R, कैपिटल Y है तो येलो और राउंड होगा। तो देखो इस सीड का जो शेप है वो कैपिटल मतलब राउंड भी है और येलो भी है। यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो एक R प्रेजेंट है कैपिटल तो राउंड हो जाएगा, येलो तो दोनों है। इस केस में यहाँ पर बात करें तो थर्ड वाले में एक कैपिटल Y प्रेजेंट है और कैपिटल R तो दोनों है तो राउंड हो जाएगा वो। इन द सेम वे अब इसमें अपन यहाँ पर देखें, इसमें तो कैपिटल Y तो है, येलो कलर तो है, लेकिन राउंड का जो कैरेक्टर है वो नहीं है। दोनों में स्मॉल आर है, मतलब वो रिंकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पर अपन इस तरह से उसको क्रॉस करवा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो प्रोजेनी बनेगी वो किस तरह की बनेगी। व्हाट विल बी द कैरेक्टर ऑफ द प्रोजेनी फॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी अबाउट द इवोल्यूशन। व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड हाउ वी हैव द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हमें पता कैसे चलता है कि इवोल्यूशन हुई है। ठीक है, तो चलिए इवोल्यूशन के बारे में पढ़ें हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से हम क्या समझते हैं, होता क्या है इवोल्यूशन। ठीक है, तो पहले अपन जानते हैं इवोल्यूशन। देखो क्या हुआ बच्चों कि पहले जब अर्थ पर लाइफ बनी, ड्यूरिंग द ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाज वेरी सिंपल। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो बहुत सिंपल थे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे वेयर ऑफ प्रिमिटिव टाइप, दे वेयर ओनली प्रेजेंट इन द सी। ये केवल समुद्र में मिलते थे, पानी में मिलते थे। फिर धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट आया और ये धीरे धीरे क्या हुआ, जो टेरेस्ट्रियल एरिया था, जो ज़मीन वाला एरिया था, टेरेस्ट्रियल वाले एरिया पर आना शुरू हुए। धीरे धीरे फिर इन्होंने लैंड को एक्वायर किया। आपने पढ़ा है कि आवर एंसेस्टर्स द ह्यूमन बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम द एप्स। हमारे जो पूर्वज है वो लाखों करोड़ों साल पहले जो बंदर थे और उनसे धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग बने। फिर तो ये जो ग्रेजुअली डेवलपमेंट है लाइफ का, कि धीरे धीरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा बनता है जो कि उससे ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा एडवांस होता है, उसमें इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। और है ना, पहले क्या था कि ह्यूमन बीइंग जो रहते थे वो जंगल में रहते थे, आपने सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है। तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होते होते और आज के जो इंसान को हम देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग, यू हैव ऑल्सो सी दिस इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो। जो प्लांट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट होता है। जैसे मैंगो की बात करें अपन, तो मैंगो जो प्लांट होते हैं, पहले जो मैंगो की साइज़ थी वो बहुत छोटी हुआ करती थी। धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट किया गया, हाइब्रिड वेराइटीज़ आई है, हाइब्रिड वेराइटी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये सब जो चेंजेस आते हैं, द चेंजेस टेक्स प्लेस ओवर द टाइम फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन में हमेशा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा बनता है जो कि उससे ज़्यादा अच्छा होता है। लेट्स सी हाउ वी कंक्लूड दैट इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड। हमें कैसे पता चलता है कि बहुत पहले के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसे थे और अब के कैसे हैं और क्या इवोल्यूशन हुआ है। ओके, सो लेट्स डिस्कस हियर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। So we have many evidences that shows us that evolution is taking place and evolution has took place. Okay, let's see. First of all, what we will see about the fossils, how the fossils provide the evolution. You have studied about the fossils in lower classes. What exactly the meaning of fossil? Fossil क्या होता है? अगर हमें ज़मीन में से किसी बहुत पुराने किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हड्डी का ढांचा मिलता है, इफ़ यू फाउंड सम स्केलेटन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वेयर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो दे वेयर एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, है ना। आप में से किसी ने डायनासोर देखा है? ओरिजिनल में किसी ने नहीं देखा, है ना, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि डायनासोर्स इस तरह के हुआ करते थे। तो कैसे पढ़ते हैं हम, कैसे पता चला हमें? कहीं ना कहीं कुछ हमें उसके रिमेन्स मिले हैं ज़मीन के अंदर। जब भी कुछ खुदाई की जाती है, एक इंडिया का एक डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का ASI, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पूरा काम है कि वो क्या करता है, ज़मीन में खोद करके ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या निकलता है उसमें से, इन सब चीज़ों की स्टडी करता है। उसी में फॉसिल्स भी आते हैं, है ना, कि कोई बहुत सारा पुराना कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, उसके रिमेन्स मिल गए अपने को, है ना। जो कोल है, पेट्रोलियम गैस है, इनको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। तो फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये बने ही जो लाखों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हो गई थी वो ज़मीन के अंदर दब गए, तो उनके कारण ये बने हैं। दे मेड अप ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दैट्स वाई दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो डेड रिमेन्स है ये हमें इवोल्यूशन बताते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले के लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, बाद के कैसे हुए। देन फिजियोलॉजी, वी विल डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जो भी उनके दिखाई देते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उनके बारे में देखेंगे। फिर हम उनके एम्ब्रियोज के बारे में देखेंगे कि एम्ब्रियोज से हमें कैसे पता चलता है। आइए देखते हैं अपन सबसे पहले सपोर्ट ऑफ फॉर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का सपोर्ट क्या क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आती है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये बताती है हमें दैट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इट सेज दैट ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ हैव डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, हमारे मतलब हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज, इस तरह से जो भी जहाँ पर भी एक जगह कहीं ना कहीं जाकर के अपन स्टेबल होते हैं। तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि लाइफ पर जो अर्थ पे जो लाइफ बनी थी वो सबसे पहले केवल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना था, एक सिंगल सेल बनी थी। एंड ऑल द लाइफ दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ दे एक्चुअली डेवलप्ड फ्रॉम दैट सिंगल सेल। उस सिंगल सेल से ही सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। सो समहाउ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो ये बताती है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, इट सेज दैट वी ऑल हैव द कॉमन एंसेस्टर। हमारे जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं एक ही हैं, ठीक है। सेकेंड, द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफर सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो इसके बारे में हमें फॉसिल्स बताते हैं सबसे ज़्यादा। फॉसिल्स क्या बताते हैं? देखो, फॉसिल्स प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ स्पीशीज दैट लिव्ड लॉन्ग एगो। फॉसिल्स हमें ये बताते हैं कि कोई स्पीशीज जो हज़ारों लाखों साल पहले रही थी, क्योंकि हमने या आपने तो किसी ने उसको देखा नहीं है, ना हमारे पूर्वजों ने देखा है, क्योंकि हमारे पूर्वज कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पुराने। तो जो हज़ारों साल पहले रही थी उसका पता हमें चलता है फॉसिल्स से। अगर जब हम कुछ खुदाई करते हैं और उनकी कुछ स्केलेटन्स हमें मिलते हैं तब पता चलता है कि इस तरह के कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर रहे थे। फॉसिल शोज दैट एंशियंट स्पीशीज शेयर सिमिलरिटीज विद स्पीशीज दैट नाउ लिव्ड ऑन। फॉसिल्स हमें ये भी बताते हैं कि जो स्पीशीज लाखों साल पहले रही थी और अभी जो स्पीशीज है
इन दोनों में क्या कॉमन है ना, वो अपन देखेंगे आगे कि किस तरह से बताती है। नाउ सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहले आता है फॉसिल रिकॉर्ड। ये इस तरह से देखो, ये फॉसिल मिला है एक जो लाखों साल पहले ज़मीन में कहीं दब गया था वो, और ये है अभी प्रेजेंट में जो एनिमल है वो। तो ये कहीं ना कहीं इनके स्ट्रक्चर को सेम दिखाता है कि इसमें एक टेल है, इसमें भी टेल है, इसके ऊपर एक कवरिंग है, शीथ है, इसके ऊपर भी कवरिंग है। दैट मीन्स इट शोज दैट दे हैव सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। इनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है। The fossil record provides information for determining the ancestry of organisms and the patterns of evolution। वो ये बताता है कि इसके ancestors कैसे रहे होंगे। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में अपन देखें तो कि इसके ancestors ऐसे रहे होंगे, इसके जो पूर्वज हैं वो इस तरह के होंगे, और किस तरह से फिर इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ये सब चीज़ें हमें फॉसिल से पता चलती है। टू मेजर क्लासेस ऑफ ट्रेट्स, डिराइव ट्रेट्स आर न्यूली इवोल्व फीचर्स। दो तरह के कैरेक्टर्स हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक जो डिराइव हुए हैं, जो कि हमने जन्म लेने के बाद हमारे अंदर डेवलप किए हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज की और हम पहलवान बन गए, तो हम जन्म से पहलवान नहीं थे, है ना। ये क्या हुआ, हमारे डिराइव्ड कैरेक्टर हो गए जो हमने जन्म लेने के बाद में खुद ने डेवलप किए। और दूसरे होते हैं एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, ये ancestral traits। These ancestral traits which we carry from our parents, जो हमें हमारे ancestors से, हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन का कलर, हमारे हेयर का कलर, हमारी आँखों का कलर, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई है, हमें पेरेंट्स से मिली है। किसी किसी के हेयर का कलर गोल्डन ब्राउन कलर का होता है ना, गोल्डन कलर के हेयर्स होते हैं। किसी की जो आईज़ है वो ब्राउन कलर की होती है, किसी की डार्क ब्लैक होती है, किसी की लाइट ब्लू कलर की होती है। तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या है, हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिले हैं। इन कैरेक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, ये नेचुरल है, ठीक है। देख यहाँ पर एक बात आती है, आर्कियोप्टेरिक्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है ना। इसको आप अच्छे से देखें, ये अपने को कई बार पूछा भी जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स का मतलब क्या है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है, और ये कुछ इस तरह का दिखाई देता था। दैट मीन्स इट इज एक्सटिंक्ट नाउ। अब ये खत्म हो गया है, अब इसके कोई भी एक सिंगल मेंबर भी अपने को अर्थ पर प्रेजेंट नहीं मिलता है ना। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, इट वॉज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। अब बात आती है कनेक्टिंग लिंक की। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है ना। तो बच्चों, जो अर्थ पर जितनी भी लाइव्स है, इन लाइव्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें से दो कैटेगरी है, एक है रेप्टाइल और एक है बर्ड्स की। बर्ड्स के बारे में आप जानते हैं अच्छे से, बर्ड्स का कैरेक्टर होता है कि वो हवा में उड़ते हैं, है ना। दूसरी एक ग्रुप है रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जैसे सांप है, छिपकली है ना, स्नेक एंड लिजार्ड। ये क्या करते हैं, ये हवा में उड़ नहीं सकते, ठीक से ज़मीन से ऊपर उठ करके चल भी नहीं सकते। ये क्या करते हैं, दे स्लाइड ओवर द अर्थ, ये बिल्कुल फिसलते हैं ज़मीन के ऊपर। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो साइंटिस्ट shows that the birds are somehow developed from the reptiles। ये किससे धीरे धीरे, बर्ड्स पहले अर्थ पर नहीं थे, पहले रेप्टाइल्स थे सभी, फिर रेप्टाइल से धीरे धीरे एनिमल बने और एनिमल से बर्ड बने। तो यहाँ पर ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स हैव द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये रेप्टाइल्स की तरह ज़मीन पर रेंग करके भी चल सकता था, क्रीप भी कर सकता था, और बर्ड्स के जैसे हवा में उड़ भी सकता था। दोनों के कैरेक्टर हैं, है ना। तो इसको ये ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच की लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और इसका भी पता कब चला अपने को, ये एक तरह का डायनासोर फैमिली का माना जाता है कि डायनासोर था, है ना। जब इसका अपने को फॉसिल्स मिले, उन फॉसिल्स से पता चला कि इस तरह का भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हुआ करता था।
देखो, शेयर्स फीचर्स ऑफ बोथ डायनासोर्स एंड बर्ड्स। डायनासोर के भी कैरेक्टर हैं इसमें और बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स हैं। सेकेंड आता है इसमें सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन में कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी मतलब जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं किसी चीज़ के, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे हम हैं तो हमारे अंदर हड्डियाँ किस तरह से हैं, किडनी कैसी है, हार्ट कैसा है, तो इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एनाटॉमी। और जब बाहर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कोई बाहर से दिखाई कैसा देता है, उसको बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजी। तो एनाटॉमी में यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास में होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोलोगस स्ट्रक्चर। रिमेंबर, इसके बारे में कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब ये है बच्चों, होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब होता है जनरेशन या उसकी बनने की प्रोसेस। होमोलोगस या उसका स्ट्रक्चर, लोगस मतलब स्ट्रक्चर, होमोलोगस मतलब सेम स्ट्रक्चर। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हमारे हाथ हैं आगे के, है ना, केट बिल्ली के आगे का पंजा है, फिर इधर दूसरे किसी जानवर के दिए हुए हैं, ये बेड जो होती है, चमगादड़ होती है, उसके बर्ड्स दिए गए हैं। तो इनका अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो समहाउ दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, लेकिन सबका काम अलग अलग है ना। हमारे हाथ अलग काम आते हैं, हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, बिल्ली के आगे के पैर जो है वो दौड़ने में काम आते हैं, बर्ड्स जो होते हैं उनके जो फीदर हैं वो उड़ने के काम आते हैं। दो दे हैव द सेम ओरिजिनेशन, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है बट काम अलग अलग है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये एक जैसे पहले रहे होंगे, उसके बाद जैसे जैसे अलग अलग इन्वायरमेंट में ये गए, इनमें चेंजेस आते गए और अलग अलग काम होता गया, है ना। तो ये अपने को बताता है, इवोल्यूशन का ट्रेड बताता है। The forelimb of vertebrates are adapted for different uses, but they all have similar bones, है ना। अपने जो फोर लिम्स, एक्चुअली क्या होता है, साइंस में हाथ और पैर नहीं होते हैं, साइंस में लिम्ब होते हैं। और फोर लिम्स आर देयर, टू फोर लिम्ब एंड टू हिंड लिम्स। हमारे जो हाथ हैं ये क्या है, हमारे फोर लिम्स हैं, और पैर जो है ये हिंड लिम्स हैं। जैसे गाय होती है तो गाय के दो आगे के पैर, दो पीछे के पैर, है ना। इन द सेम वे हमारे भी ये आगे के पैर हैं, जिसको हमने समय के साथ में अडॉप्ट किया, दो पैरों पे खड़ा होना सीखा और दोनों हाथों को हमने दूसरे यूज़ के लिए लगाया। तो फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब के स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो सबके फोर लिम्ब के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, बट फंक्शन सबके अलग अलग हैं। सिमिलर होमोलोगस मतलब दैट मीन्स सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस, उसको बोलते हैं अपन होमोलोगस। दूसरा आता है एनालोगस, जिसमें ये क्या रहता है, सिमिलर की जगह डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता है बट फंक्शन सेम हो जाते हैं। स्ट्रक्चर अलग अलग, फंक्शन सेम। जैसे बर्ड्स, तो जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के जो विंग हैं, पंख होते हैं वो, प्लस जो फ्लाइज होती है, इंसेक्ट हैं, उनके पंख, दोनों पंख का स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग होता है, लेकिन दोनों उड़ने के काम आते हैं, है ना। तो वो हो जाते हैं अपने, यहां पर अपन देखते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर में देखो यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बर्ड है, बर्ड के विंग्स है, और एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट के विंग है। दोनों के विंग का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है पूरी तरह से, बट दोनों के फंक्शन सेम होते हैं, क्योंकि एना का मतलब होता है डिफरेंट और लोगस मतलब स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर डिफरेंस और फंक्शन सेम, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर। एक हमारे पास में यहाँ पर और आता है जो सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन में है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, और वी ऑल्सो कॉल इट वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल का मतलब होता है कि जिसका कोई फंक्शन ना हो। वेस्टिजियल ऑर्गन्स or vestigial structures are the structures which are present in the human body or in other living organisms but they do not have any functions। उनका कोई भी फंक्शन नहीं होता है। आपने सुना होगा कई बार कि किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है ना। तो अपेंडिक्स क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, बट उस ऑर्गन का अभी हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है।
तो अगर उसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर उसको काट करके बॉडी से बाहर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़े दिन बाद वो पर्सन फिर से बिल्कुल हेल्दी हो जाता है, उसमें पता नहीं चलता है कि इसकी बॉडी से कोई ऑर्गन निकाला है। तो साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि जो अपेंडिक्स है उसका मेन फंक्शन हुआ करता था सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। सेल्यूलोज जो ग्रीन लीव्स में होता है, घास में होता है, सभी हरे पत्ते जो होते हैं उनमें सेल्यूलोज होता है। तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे जो जंगलों में रहते थे लाखों साल पहले, उनके पास उनको खाना बनाना नहीं आता था, आपने पढ़ा है सोशल साइंस में, है ना। तो जो एंसेस्टर्स थे, एंशिएंट ह्यूमन जो था उसको खाना बनाना नहीं आता था, वो कच्ची चीज़ों को खाता था। उस केस में क्या रहता था कि वो उसको पचाने के लिए यूज़ होता था। अब धीरे धीरे इंसान ने खाना पकाना सीख लिया, सब्जी उगाना सीख लिया, तो अब वो सेल्यूलोज उसकी बॉडी में बहुत कम जाता है, उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पका लेता है इसको। तो इन दैट केस दैट organ which was responsible for digesting the cellulose is now have no function in the body। तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, उसका काम नहीं होता था, तो धीरे धीरे वो वेस्टिजियल हो गया। तो ये बताता है अपने को कि जो ऑर्गन वेस्टिजियल है वो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे उनका यूज़ कम हुआ वो धीरे धीरे नॉन फंक्शनल होते गए एंड नाउ दे आर बिकम द vestigial one। So these are the major resources, or we can say major evidences which shows us how the evolution took place।